नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सॉरी आज थोड़ी सी लेट हो गई लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर थी मेरे घर पे तो बात है कि आज अदर्स जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये बोल रही हूँ, पहले मैं बंगाली में बोल रही हूँ फिर हिंदी में बोल रही हूँ और प्लीज़ साथ साथ में इंग्लिश को भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड अपडेट्स एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन so that you never miss an updates। সবাইকে আমার বলার এটাই যে প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন। আজকে আমরা পরবর্তী প্রশ্নগুলো নিয়ে আসছি। এখানে তোমরা বা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 60 নাম্বার থেকে আছে, তো আমি 60, 61 অ্যান্ড 62 এই প্রশ্নগুলো একটু ডিটেলস আলোচনা করতে হবে, কারণ সেই বিষয়টার যে টেক্সট আছে বা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সেটার কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন। তো এটা কনসেপ্ট বেসড, তো এই আইডিয়াটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না হলে এখানে বলা বা যাবে না। তো এটা আমি আজকে মানে অন্যদিন এই খাতাতেই নিয়ে আসবো, উত্তরটা বলবো। আজকে যেখান থেকে শুরু করছি 63 নাম্বার, হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ওয়াজ নট অ্যাসোসিয়েটেড লেক স্কুল অফ পোয়েট্রি। আগেন আমি এখানে বলবো যে আবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো লিটারারি মুভমেন্ট অ্যান্ড লেক স্কুল অফ পোয়েট্রি ইটস আ রিপিটেটিভ কনসেপ্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক ইন ইউজিসি নেট অ্যান্ড any other competitive exams in English literature and mostly NET, SET and GATE। So S.T. Coleridge, Robert Southey, William Blake, William Wordsworth। তো লেক পোয়েট হিসেবে আমরা জানি কোলরিচ, সাউথে অ্যান্ড ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই তিনজনকেই দেখা যায়। অনেক সময় তিনজনের মধ্যে বলা হয় কে মানে সেইভাবে কোয়েশ্চেন করা হয়। তো এখানে বলছে কে নন, তো উইলিয়াম ব্লেক ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট এখানে ম্যাচিং, আমি সেই ম্যাচিংগুলো কার কোনটা লেখা নিয়ে এসেছি। তো এখানে বিক্রম শেটের লেখা হলো ফ্রম হিবেন লেক, ভিএস নেইলপল দ্য মাস্ক অফ আফ্রিকা, সালমান রাশদি নাইফ যেটা আমরা বলতে পারি রিসেন্ট পাবলিশড হয়েছে। দেন ঝুম্পা লাহিড়ী দ্য লোল্যান্ড। তারপর একটা কনসেপ্ট আছে এটা এই বিষয়টা। তো আজকে 60, 61, 62 অ্যান্ড 65 নম্বর কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করবো এবং ইন ডিটেলস, কারণ এগুলো কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন্স, টেক্সটের ভেতর থেকে যেমন প্রশ্ন হয় সেরকম। নেক্সট প্রশ্ন, অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং ইন্ডিয়ান রাইটার্স ইন দ্য কারেক্ট ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার অফ দেয়ার বার্থ। আগেই বলেছিলাম গতদিনই যে জন্ম তারিখ হিসেবে কে আগে এসেছে কে পরে এসেছে। তো প্রথমেই আমরা পাচ্ছি শ্রী অরবিন্দকে 1872, দেন সরোজিনী নাইডু 1879, দেন আমরা পাচ্ছি কে এস ভেঙ্কটরমণী সেটা হচ্ছে 1891 লাস্ট। তারপর আমরা কাকে পাচ্ছি, তারপর আমরা পাচ্ছি আর কে নারায়ণকে 1906 এবং লাস্টে রাজা রাও 1908 জন্ম তারিখ হিসেবে। তো এনাদের লেখাও কিন্তু ক্রোনোলজিক্যালি রেডি রাখতে হবে। এবং এখানে এই যে চারজন প্রমিনেন্ট ফিগার ভিএস নেইলপল, বিক্রম শেঠ, সালমান রাশদি, ঝুম্পা লাহিড়ী, এগুলো হট টপিক, স্টার মার্ক দেওয়া টপিক, এগুলোকে ওনাদের প্রত্যেকটা লেখাকে ক্রোনোলজিক্যালি এবং ইন্ডিভিজুয়ালি প্রিপেয়ার করতে হবে। নেক্সট আবারও একটা প্রশ্ন আসছে, সেটা হলো যে কি, সেটা হলো ম্যাচিং, মানে এগুলো ম্যাচিং ছিল, আমি আনসারগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এপিগ্রাম, এগুলো আমরা এগুলো আমরা বলবো লিটারি টার্ম। এপিগ্রাম, এপিগন, ডাইজেসিস, এলিসন এবং ডাইজেসিস নিয়ে আরেকটাও পেয়েছি, তো সেটা হাইপারটেক্সট, ডাইজেস, ফুকোস, এই কনসেপ্টগুলো ক্রিটিসিজমের ক্ষেত্রে এবং এই এক একটা করে শব্দেরই অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানে আছে, অর্থ আছে, সেটা আমরা আলোচনা পরে করব। তো এপিগ্রামের যেটা আছে ম্যাচিং, সেটা সঠিক উত্তর হলো এ শর্ট পোম with a witty turn of thought or a wittily condensed expression in prose। Epigon হচ্ছে an inferior or derivative follower of a more distinguished writer and Diegesis হচ্ছে a term used in a modern narratology to designate the narrated events as a level distant from that of the narration। Next হচ্ছে elision the slurring or suppression of a vowel sound or syllable। তো এপিগ্রাম তারপর এগুলোকে বাংলায় আরও সুন্দর করে নিয়ে আসবো, সেটা একটা টপিক হতে পারে বা দুটো হতে পারে, সেটা পরবর্তীতে। এখানে শুধু কোয়েশ্চেনের থেকে সলভ করানো হলো। এবং 60, 61, 62 অ্যান্ড 65 নম্বর কোয়েশ্চেন্স, দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা ডিউ থাকছে, পরবর্তীতে নিয়ে আসবো। এখন আমি হিন্দিতে এই চারটে কোয়েশ্চেনকে কভার করছি, তারপর আমি এই ভিডিওটাকে আপলোড করছি। তো প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার, বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন। সো
अभी मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ। तो पहले मैं और बोलने चाहूँगी कि अगर आपको दोनों लैंग्वेज समझ में आती है तो आप दोनों ही सुनिए, तो आपका एक ही वीडियो में दोबारा रिपीट हो जाएंगे। और अगर आपको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है तो पहले ही बंगाली बाद में हिंदी, तो जो वाला आपको समझ में आती है वही फॉलो कीजिए। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 60 नंबर से, जो कि मैंने आंसर्स नहीं लेकर आई क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ये जो टेक्स्ट के अंदर से बातें पूछे गए हैं, तो ये डिटेल में बिना पढ़े हुए हम और मैं कोई भी आपको सही आंसर नहीं कह सकते। हाँ, कुछ सर्च करके आप लोगों को बोल सकते थे, लेकिन हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करनी है, क्योंकि पोएटिक जस्टिस हो, निहिलिज्म हो, या चाहे जो कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ दिखने को मिल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू क्लासिसिज्म। नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं कि एक 62 नंबर के 60, 61 एंड 62 को बाद में हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि अच्छे तरीके से आंसर्स को डिस्कस करेंगे, उसके साथ कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे ताकि हमें बाद में भी हेल्प हो। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद लेग स्कूल ऑफ पोएट्री। मुझे अभी ये बोलनी है कि आप लोगों को पता है, मैंने फिर बोलनी है कि लिटरेरी मूवमेंट को मैंने कवर करके रखी थी मेरी यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग सर्च बार पे जाइए और सर्च कीजिए लिटरेरी मूवमेंट और नेम लिखिए और उसके साथ लिखिए फ्रॉम एसबी लिटरेचर। आप लोगों को मेरी वीडियो दिखने को मिल जाएंगे। आप लोग, ये रिपीटेटिव कंसेप्ट है, ये हॉट टॉपिक है, ये कंसेप्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस.टी. कोलरिज, रॉबर्ट साउथी, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन ये लेग स्कूल ऑफ पोएट्री के ग्रुप में रिलेटेड और एसोसिएटेड और कनेक्टेड नहीं है, वो है विलियम ब्लेक, क्योंकि कोलरिज, साउथी एंड वर्ड्सवर्थ लेग पोएट्री कहे लेग स्कूल ऑफ पोएट्री इनको कहे जाते हैं एक साथ में। फिर बाद में हम देख रहे हैं विक्रम, मतलब कि मैचिंग थे, मैंने ये मैच करके ही लेकर आई। विक्रम शेट की लिखी हुई वर्क है फ्रॉम हिबन लेक, विवेस नेलपॉल की द मास्क ऑफ अफ्रीका, सलमान रश्दी नाइफ, झुम्पा लाहिरी द लो लैंड। तो ये सारी चीज़ों को, मतलब ये चार जो है विक्रम शेट, वीएस नेलपॉल, सलमान रश्दी, झुम्पा लाहिरी, दिस आर हॉट टॉपिक एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एंड गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट अवॉइड दिस टॉपिक्स, यू हैव टू प्रिपेयर। एंड साइड बाय साइड आप लोगों को ये जो टेक्स्ट के नेम है इसके क्रोनोलॉजिकली और कि किस बारे में बात कर रहे हैं थोड़ी बहुत सामग्री पढ़ लेना। नेक्स्ट 65 क्वेश्चंस में स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सी करेक्ट है नहीं है, इसमें भी मुझे आप लोगों को डिजायरिंग मशीन्स, ड्रीम वर्क के बारे में, हाइपरटेक्स्ट में, हाइपोटेक्स्ट में, फूको को डाइजेसिस के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, ताकि ये सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर होकर ना रहे, ताकि आप लोगों को ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आपके साथ साथ क्लियर होते जाए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर इससे कोई क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप सही आंसर करने में सक्षम हो रहो। ये मैं बाद में लेकर आऊंगी। 66 नंबर क्वेश्चंस में अरेंज द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। मैंने कल ही कही थी और पहले भी कही थी कि डेट ऑफ बर्थ से, प्लेस ऑफ बर्थ से क्रोनोलॉजी पूछे जा रही है, चाहे वो इंडियन ऑथर राइटर हो सकता है, चाहे वो कोई भी लिटरेचर के राइटर हो सकते हैं, किसी भी पीरियड के, किसी भी एरा के। ओके, तो पहले हम लोगों को पता चला कि श्री अरबिंदो जी के बर्थ हुआ 1872 में, फिर सरोजिनी नायडू के 1879 में, फिर उनके बाद के एस वेंकटरमणी 1891 में, फिर हमें देखने को मिली ए के नारायण को 1906 में, फिर राजा राव को फाइनली 1908 में। तो इन लोगों को क्रोनोलॉजिकली इनके जो राइटिंग्स है उसको भी प्रिपेयर करके रखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप खुद से कर रहे हो तो अब बहुत ही एडवांस लेवल पे जाने वाले हो, चलने वाले हो, आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा एग्जाम में। अगर आप नहीं करने वाले हो तो दिक्कत है, हो सकते हैं, होंगे ही ज़रूर। नेक्स्ट, एपिग्राम, एपिगन, डाइजेसिस, एलिसन। यहाँ पे मैं आज सिर्फ मैचिंग के दर पे पढ़ाऊंगी, लेकिन बाद में मैं आपको जब वो 60, 61, 62 एंड 65 चार क्वेश्चंस के साथ ये क्वेश्चंस भी, 5 क्वेश्चंस भी, एपिग्राम, एपिगन, डाइजेसिस, एलिशन, मुझे ये सारी चीज़ें भी अलग से आप लोगों को समझानी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बाद में भी रिपीट हो सकते हैं। ऐसे हम प्रिपेयर करेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो हम सही आंसर करने में सक्षम रहे। एपिग्राम इज अ शॉर्ट पोम विद अ विटी टर्न ऑफ थॉट और अ विटिली कंडेंस्ड एक्सप्रेशन इन प्रोज। एपिगन एन inferior or derivative follower of a more distinguished writer. Diegesis, a term used in modern narratology to designate the narrated events as a level distant from that of the narration. And elision, the slurring or suppression of a vowel sound or syllable. ये आप लोगों को याद रखनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए थोड़ी इंतजार करनी पड़ेगी। आज मैंने कवर की 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस, बट 4 क्वेश्चंस को मैंने ड्यू रख दी, क्योंकि ये 4 क्वेश्चंस मतलब 4 ये
मैप जो एपिग्राम, ये मतलब 5 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। शायद आपको एक दिन की जगह 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन मैं ये करवाऊंगी। मतलब किस दिन करवाऊंगी, मुझे थोड़ी टाइम चाहिए, मैं थोड़ी बिजी हूँ। नवंबर की 2-4 मतलब नवंबर 5 नवंबर के बाद लेकर आऊँगी। ओके, मैं थोड़ी बिजी हूँ, लेकिन हाँ प्रीवियस क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। शायद मैं कुछ कभी कभी 1 मिनट के वीडियो में भी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ, ये फिर और कोई प्रीवियस मतलब इसी सीरीज़ के क्वेश्चंस के और कोई क्वेश्चंस करवा दूँ। लेकिन मैं थोड़ी आज 27th 8 9 30th 31st 1 2 3 4 मतलब कि मैं 8 और 9 डेज थोड़ी बिजी हूँ, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे। मैं यहाँ पे